with Shaini Ekadashi or Ashadi Ekadashi, which happened on Thursday. Then we'll speak on the glories of Pandharpur Dham, and then the story of how Vitthal Giti came into being and how the Dindira Van appeared. Pandharpur area is called Dindira Van. So the whole of Pandharpur area falls under Dindira Van and how that came into being. And then we discuss various aspects of Pandharpur. And finally, the most important mood of the devotees in Pandharpur. What is the mood of devotee? What is the mood of the Varkaris? So, Ashadi Ekadashi is a time when lakhs of devotees from various places, especially from Dehu, Alandi, they go and walk all the way to Pandharpur. So I was in Pune for 6 years and I had that privilege to watch the Dindis. I was staying in near camp in Salisbury Park area, and from our building when you sit down, the Dindis used to go many weeks before the Ekadashi, Ashadi Ekadashi. Dindis, the Varkaris used to be, they were singing and dancing, and the ladies were having the tulsi plant on their heads. So these Varkaris walk all the way, many of them walk all the way for a month and reach the Dham of Pandharpur finally, singing with kartals. So they reach before the Ashadi Ekadashi, 1 or 2 days before the Ashadi Ekadashi, or on the day of Ashadi Ekadashi. So when they reach there, the first thing they reach before, then they stand in the queue and have darshan of the Lord, stand for 1 or 2 days. And some people don't get darshan of the Lord after walking for 1 month, and they just see the top of the temple, the Dhwaj, and they go back very happy that they have completed the yatra and they have seen the Lord. So that is their mood. It's a very festive mood in Pune. All Dindis going and you see. So a very spiritual atmosphere is created there in Punya Nagari. So this Shaini Ekadashi, this Ashadi Ekadashi is also called Shaini Ekadashi. Shaini Ekadashi because it said that Lord Vishnu goes to sleep, Shayan, for 4 months. And this is also the start of Chaturmasya, right? Chaturmasya. And there are 2 very important Ekadashis. One is the Shaini Ekadashi and second is Kartik Ekadashi, in the Kartik month. So there the Lord wakes up, Lord Vishnu wakes up. It is also called Utthan Ekadashi, where the Lord wakes up. So it is said that whoever observes this Ashadi Ekadashi, we all observe the Ekadashi, whoever observes, whoever sings the glories of the Lord, and hears the Katha of the Lord, hears the Kirtan, does devotion service, goes back to the Vishnu's abode and doesn't have to come back again. Can you see the benefits of devotion service? You follow the Ekadashi nicely and you get all these benefits which are coming to you. Goes to the Vishnu abode. Of course, if you do it with that devotion, but you get a lot of spiritual benefits one day after another. We are keeping on getting spiritual benefits. So the story of this Shaini Ekadashi is that once Lord Yudhishthir inquired to Lord Krishna, "Yo Krishna, please tell me about this Shaini Ekadashi. What is this?" So Krishna said once Narad Muni had asked the same question to Brahma, and Brahma told this. So there was a king called Manadhata who was ruling the entire world, the entire earth. In previous times, the kings used to rule the entire earth, right? And 1 year there was no rains there. There were no rains there. And the second year passed, still no rains. The third year passed, still no rains. The king was a very pious king. He was a devotee of the Lord. But the Praja was saying, why? Why is the situation? No? What is happening? What is the wrong thing? What is the sinful thing which we are doing? So the king was not able to understand. So he went into the forest and he met Angira Muni. And he said, "Oh Angira Muni, what is the reason why our Praja has to suffer so much?" So Angira Muni said that a Gyani person, a person who is not supposed to do tapasya in their kingdom, is doing that tapasya. So that's why your whole kingdom has to face this calamity. So the king asked, now what should we do to address this calamity? So says Angira Muni said that there is a Ekadashi called Shayani Ekadashi, Ashadi Ekadashi, which if you and your Praja follows, then the rains will come. And then the king and his whole kingdom, all people follow this Ekadashi, and then
their sinful reaction get eradicated, and the rains fall. So it's a very important thing that in the previous times, the rains used to fall exactly in the Satya Yuga, Treta Yuga, at a time scheduled, जून के स्टार्ट में फॉल होगा, and during daytime फॉल नहीं होते थे, नाइट टाइम में फॉल होते थे, and there was no water scarcity. Indra used to supply proper rains at proper time, and now the rains sometimes are coming in October, November, so all the farmers, whatever crops they have grown, they get lost. So that is the problem. As the Kali starts and degrades, then the rains also become very haphazard. Rains will fall here, but not in the catchment areas. You will have a lot of rains here. There will be total flooding here, but not in the catchment areas. So all these things you will find in Kali Yuga, but in Satya Yuga, Treta Yuga, they are falling at time. And if they don't fall, then the projection is, well, what is happening? Why is this rains not coming? The king used to go to the city people and to address it, and the rains used to fall, right? So that was a state. So in this Lord Vitthal during this time in Pandharpur, usually he is in Aishwarya Bhav. But during this Ekadashi, Ashadhi Ekadashi and Kartikeya Ekadashi, he is put in Gopal Vesh. He is dressed as a Gwala. Why? Because it is said that the Krishna enjoys the most in Vrindavan. He is most blissful in Vrindavan. So in today's day, not today's day, but when the Ekadashi is there, Ashadhi Ekadashi, the Lord Vitthal, who is dressed as a Gwala, right? So he is most merciful. He is in that mood, and he gives you a lot of mercy. Same is the case where it is said that Lord Krishna came in Pandharpur in the form of Gopal. With Gopal, he came with his cows, he covered boys, and there is a place called in Pandharpur called Gopalpur. And in Gopalpur, you have, even now to this day, there are footprints of Krishna. There is a place where there are footprints of Krishna on the stone, and there are other stones where the hoofprints of cows are there. So when we say that these gathas which are there, right, nowadays people say, this is mythology. People, government also says mythology. We are taught that this is mythology. But this is not mythology. If you go to Pandharpur, you find footprints of Krishna. If you go to Vrindavan, you find footprints of Krishna. If you go to what is this place? Dwarka. You still have Dwarka. You still have Ayodhya. You still have Mithila. The people speak about Sita. So if you go to various places, we went to South India Yatra where there is Hampi, the birthplace of Hanuman. We saw the Anjaneya Parvat. We went to Rameshwar, we saw Dhanushya Code. So everywhere in India there are spots where Lord in various incarnations has visited. The people are telling that this all cannot be made up. So when people say this is not mythology, this is the history of India. And we should be proud of it. We should be telling this is the history of India, right? So same is with Pandharpur. Pandharpur is a place where Lord Vitthal himself has appeared. So now I just want to ask people, how many of you have visited Pandharpur? Yeah. Wow! So most of the people have visited Pandharpur. So I just want people to share a few things, one or two things which they like or what they feel about Pandharpur. Anyone? One or two people? 50. Yes. Anyone? Yes, you can share. Chandrabhaga Nadi. Yeah, so what do you like there, Chandrabhaga? So there is Chandrabhaga Nadi, correct? You can take a drink. What else? Yes, Roja. Okay, I could not hear. Whatever dress was on, you can give that. Dress wear on Ekadashi. Even in Ekadashi, same dress wear on 26 January also. Okay, wonderful, very good. Anyone else wants to share? Mataji wanted to share something. Okay, you can just share like that. No problem.
कृष्णा या चंद्रभागा नदी वो तो है ही और भगवान विठोबा और भगवान का जो विग्रह है ना हाँ वो तो उसकी तो कोई क्या बोलना तुलना ही नहीं। तुलना ही नहीं है। और वहाँ पे जो अपना स्टोन है वो जो वहाँ बैठ के जो सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है वो देखने का जो हम कर सकते जो गोपाजी करते थे और उनके उनका ये हम कर सकते हैं ऐसी चीज़। Okay, good. Yes. So one more, last one. हाँ? Okay, विश्वरूप समाधि, very good, excellent. तो द ग्लोरीज ऑफ पंढरपुर दिया है। मैं अभी थोड़ा हिंदी में बोलूँगा बिकॉज मैंने प्रिपेयर इंग्लिश में किया था, मुझे बोला कि हिंदी में बोलिए तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूँगा। तो जहाँ पे बोलते हैं कि स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इसको बोलते हैं विठ्ठल क्षेत्र। जो भी वो धाम में आता है ना उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको मुक्ति मिलती है। ये पंढरपुर की मान जस्ट आप देखो धाम में एंट्री और आपके पाप नष्ट होते हैं और आपको मुक्ति मिलती है। ये उसकी महिमा है पंढरपुर धाम की। और ये इस धाम में विठ्ठल कैसे खड़े हैं अपने कट्टी पे कमर पे हाथ रखे हुए और कितने युगों से खड़े हैं 28 युगों से खड़े हैं। क्यों? अपने भक्त के लिए और सबको दर्शन दे रहे हैं, सबको कृपा दे रहे हैं। उसको भूवैकुंठ भी बोलते हैं, दक्षिण द्वारका भी बोलते हैं। तो आपने अभी अभंग सुना माझे माहेर पंढरी। तो सब भक्त पंढरपुर क्या समझते हैं? अपना माहेर समझते हैं। माहेर में क्या? मैका। अभी कोई भी शादीशुदा औरत रहे वो सबसे पीसफुल किधर रहती है? जब अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं ना, कोई टेंशन नहीं, आराम से सोने का, कभी भी उठने का, जो पीसफुल रहता है शेल्टर ऑफ द पेरेंट्स में जब मैके में जाके सबसे अच्छा समाधान मिलता है। तो वैसे ही वो भक्त लोग क्या समझते हैं कि हमारा मायका है ना। कृष्ण भगवान को पिता मानते हैं, रुक्मिणी को माता मानते हैं। कभी वो बोलते हैं तो माऊली बोलते हैं, कभी कृष्ण को माऊली बोलते हैं, माँ बोलते हैं। और कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं। तो अपने एकदम उनका जो संबंध रहता है ना, आपने अगर उन भक्तों को देखा तो दे ट्रीट पंढरपुर विठ्ठल अपने फैमिली मेंबर जैसे। जैसे मेरे फैमिली मेंबर है ना, मेरे माता, मेरे पिता, ऐसे उनका है। तो मेरे को एक भक्त बोल रहे थे जो भी पंढरपुर जाते हैं वो, मैं भी एक बार गया हूँ, बहुत बार बार जाते हैं। वो बोलते हैं कि विठ्ठल में इतना फैमिली बॉन्डिंग है उनका, तो उसको ये काया भी बोलते हैं। और ऐसे जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को कालिया बोलते हैं वो सब पंडा लोग एकदम प्यार में है कालिया। तो हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग उनको जगन्नाथ हम लोग का वो लेवल नहीं है। तो उनका वो लेवल है कि वो उनको एकदम फैमिली बॉन्डिंग जैसे बात करते हैं। ऐसा वो धाम है। तो ये भीमा नदी जो है ना, भीमा नदी के तीरी वो बोल रहे थे। तो भीमा नदी के तीर पे वो पंढरपुर धाम है। और वो भीमा नदी ना कर्व करती है, एक टर्न लेती है एक जगह पे और फिर वो बन जाती है चंद्रभागा। तो ऐसा बोलते हैं कि भीमा नदी में स्नान करने से आपको बहुत ही आध्यात्मिक सुकृति मिलती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सुकृति चंद्रभागा में स्नान करने से मिलती है। चंद्रभागे स्नान जे करती, ऐसे हमारा गणपति के टाइम भजन है। दिंड्या पताका वैष्णव नाचती, पंढरीचा महिमा वर्णावा किती, ऐसे बोलते हैं। तो इसमें ज्ञानेश्वर, तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु ने भी विजिट किया है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप धाम में कैसे जाते हो पंढरपुर में। तो आप धाम में कैसे जा सकते हैं? तो फिजिकली जा सकते हैं, लेकिन बहुत बार फिजिकली आप जाके भी धाम में नहीं पहुंचते। आप देखते अरे ये प्रॉब्लम है, इधर लाइन है, ये पंडित ऐसा है, हमको भगा रहे हैं। तो धाम में जाने का तरीका क्या है? कि जब आप धाम के बारे में श्रवण करते हो, तो आप धाम के बारे में जब श्रवण करते हो कि आपकी चेतना वैसे होती है, आपका कॉन्शियसनेस बिल्ड होता है। और तभी आप जब धाम में जाते हो आपको धाम दिखता है, दैट धाम इज रिवील्ड टू यू। अदरवाइज दैट धाम इज कवर्ड बाय व्हील ऑफ माया, माया से वो धाम ढका हुआ है। लेकिन जब आप भगवान का श्रवण करते हो धाम के बारे में, तो माया का जो व्हील है ना वो निकल जाता है और आपको वो आध्यात्मिक धाम नजर आता है। तो मुझे याद है जब मैं पहले जगन्नाथपुरी धाम में गया था 2001 में,
तो हम लोग अभी ट्रेन से जाते थे, अभी प्लेन से जाते हैं। 24 घंटा लगता है यहाँ से वहाँ पहुँचने को, हाँ। और वो 24 घंटे में हमारा पूरा कथा चलता था जगन्नाथ के बारे में। तो हमारे काउंसिलर किशोर शिलाव वो हमको कथा सुनाते थे। तो सुना कि जगन्नाथ धाम ऐसे है, उधर पंडा है, सॉरी उधर जो भी धामवासी है वो 400 विष्णु फॉर्म्स है। तो बाय द टाइम मैं जगन्नाथ में पहुंचा 24 घंटे के बाद, तो तभी मेरे को सब पंडा 400 विष्णु फॉर्म दिख रहे थे। एक्चुअली फर्स्ट टाइम था, तो मैं सबके दंडों मार रहा था, और जो भी वो पैसा मांगते थे सब दे रहा था। तो मेरा दोस्त बोला, प्रभु वो पैसा मत दो, नहीं वो 400 विष्णु फॉर्म को देना चाहिए, ऐसा मेरा कॉन्शियस हो गया। तो ये कभी होता है, धाम कभी देख सकते हो जब आप श्रवण करते हो ना, श्रवण करते हो तो आपको आसक्ति होती है। जब मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मैं पंढरपुर की महिमा के बारे में सुन रहा था और पढ़ रहा था, लेक्चर सुन रहा था। तो मैं एक बार गया पंढरपुर, मेरे को डिजायर हुआ हमें वापस एक बार जाना चाहिए मुझे, हाँ। तो ये श्रवण का परिणाम है कि आप श्रवण जब ये करते हो तो आपको भक्ति करने की क्या बोलते हैं, एंथुसियाज्म आता है ना, भक्ति करने के लिए एंथुसियाज्म आता है। तो ऐसे बोलते हैं स्कंद पुराण में कि पंढरपुर ना धरती पे नहीं है, वो 1 माइल ऊपर आकाश में है, लेकिन अपने को नहीं दिखता है। उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, शुद्ध भक्त को ही तो दिखता है, लेकिन पुराण में ऐसा कहा है वो धरती पे नहीं है वो धाम, 1 माइल इनटू द स्काई, बट वी सी इट ऑन द लैंड बिकॉज़ वी आर नॉट प्योर। तो यहाँ पे तिरुपति को बोलते हैं कांचन ब्रह्मा, कांचन ब्रह्मा यानी वेल्थ। तिरुपति बालाजी मोस्ट वेल्दी टेम्पल ऑफ इंडिया है तिरुपति। जगन्नाथ को क्या बोलते हैं, जगन्नाथपुरी को अन्न ब्रह्मा। उधर 56 टाइम 56 भोग लगता है दिन में। और रथ यात्रा में हम लोग, मैं अभी गया था रथ यात्रा, 10 to 15 लाख पीपल कम, सबको जगन्नाथ प्रसाद मिलता है। वो 2-3 दिन में सबको जगन्नाथ प्रसाद खाते हैं। कैसे खाते हैं, प्रसाद बनता है, सबको जगन्नाथ प्रसाद मिलता है, कोई एक भी नहीं बचता जिसको। और जगन्नाथ में जगन्नाथ प्रसाद खा के ही आप भगवत धाम जा सकते हो, ऐसे है। और पंढरपुर को क्या बोलते हैं, नाद ब्रह्म, नाद ब्रह्म, नाद यानी ध्वनि। तो पंढरपुर में सब लोग क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं और नृत्य करते हैं वहां पर, और वो कीर्तन करते करते आप भगवत धाम जा सकते हो। तो ये धाम पहले से, दिस धाम वाज मैनिफेस्टेड अर्लियर, जब ये भौतिक जब हुआ था तब ये पंढरपुर धाम ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हुआ था। लेकिन जब कृष्ण द्वारका से यहाँ आए तो उसकी महिमा लोगों को पता चली, देन इट बिकेम फेमस पंढरपुर धाम। और एक है पंढरपुर की खासियत कि यहाँ पे जो विठल का विग्रह है वो किसने बनाया नहीं, वो खुद विठल है और विग्रह के रूप में हो गए। और ये विग्रह को क्या कर सकते हैं हम, आप गए थे पंढरपुर, जितने लोग गए थे पंढरपुर, उसमें क्या कर सकते हैं, विग्रह को छू सकते हैं, उसके चरण स्पर्श कर सकते हैं, उसके चरण स्पर्श कर करके घिस गए हैं। आपने देखा चरण स्पर्श करके घिस गए हैं। तो इस पहले जगन्नाथपुरी में हम जगन्नाथ को आलिंगन दे सकते थे, लेकिन ये एक ही विग्रह अभी बचा हुआ, अभी नहीं दे सकते थे। लास्ट 5 साल से बंद है ये। जगन्नाथ बोले अभी बहुत हो गया तुम लोगों का, अभी नहीं आलिंगन चाहिए मुझे। जब ये नवकलेवर हुआ ना, नए जगन्नाथ आए ना, तो वो पांडा बोलते इसको एक छूट इतना अच्छा लगता है, इसके लिए वो उसने बंद कर दिया। तो लेकिन अभी भी पंढरपुर बचा है जिसको आप छू सकते हो, उसके चरण स्पर्श कर सकते हो। तो ऐसे बोलते हैं कि 18th सेंचुरी में, 1873-74 तक आप पंढरपुर के विठल को भी आलिंगन दे सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि उधर एक भक्त आए, कोई तो भक्त आए, और उसने उसको ना, एक भक्त ने एक पत्थर से उसके चरण को मारा। दूसरे एक भक्त ने उसको टॉन्ग बोलते हैं ना, चिमटा मड़ी बोलते हैं, टॉन्ग बोलते हैं इंग्लिश में, तो चिमटे से उसको मारा। तो उन्होंने वो बंद किया आलिंगन करना, और फिर बोले सिर्फ आप दूर से चरण स्पर्श ही करो। तो ये विग्रह कैसे आए, तो पुंडलिक की ये कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। पुंडलिक नाम का एक ब्राह्मण था, उसके पेरेंट्स थे जानुदेव और मदर थी सत्यवती माता जी, सत्यवती माता। तो ये पुंडलिक ने शादी की, लेकिन वो अपने पेरेंट जो है माता पिता की बिल्कुल देखभाल नहीं करता था। दे वर टोटली नेग्लेक्टेड, दे वर मिसट्रीटेड। पेरेंट्स परेशान थे कि ये बच्चा कैसा बच्चा मिला हमको, बीवी के पीछे ही था, लेकिन पेरेंट्स को मिसट्रीट करता था टोटली।
तो क्या हुआ, पेरेंट ने सोचा, वो उसके पेरेंट जो थे वो विष्णु के शुद्ध भक्त थे, वो विष्णु के भक्त थे। उन्होंने सोचा कि हम लोग जाएंगे काशी, और काशी जाके हम लोग उधर अपना देह त्यागेंगे जिससे हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो काशी में क्या होता है, काशी किसका स्थान है? हाँ, लॉर्ड शिवा का, शंकर का। और उधर मुक्ति कैसे मिलती है लोगों को? क्योंकि लॉर्ड शिवा परम भक्त है, हाँ, महावैष्णव है विष्णु के। तो ऐसे बोलते हैं कि जो भी काशी में मरते हैं, गुजर जाते हैं, उनके काम में लॉर्ड शिवा स्वयं आता है और राम का नाम देता है। और जब भी आप अंत काल में शुद्ध भक्त राम का नाम लेते हैं तो आप फिर वो धाम में चले जाते हो, आपको मुक्ति मिल जाती है। ये काशी का वैशिष्ट है। बोले हम जाएंगे। तो जब भी कुंडली ने कुंडली को समझ में कि पेरेंट है, बोले मैं भी आऊंगा, मुझे भी काशी जाना है ना। तो वो चला अपने पेरेंट्स के साथ, और वो चला किस पे? हॉर्स कार्ट पे, घोड़े गाड़ी पे चला। और ये था घोड़े गाड़ी में अपने बीवी के साथ, और पेरेंट थे पैदल, हाँ, ऐसे जा रहे थे वो जाते जाते वो एक मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। वो मुनि का नाम है कुकुट स्वामी। कुकुट स्वामी मुनि के आश्रम में उधर रुकते हैं, पंढरपुर जाते बीच में। तो वो रात को कुंडली को नींद है, वो जागता रहता, तो वो देखता है बहुत ही सुंदर सुंदर स्त्रियां कहाँ से आ रही है, आकाश से आती है उधर, और नीचे उतरते हैं मुनि के आश्रम में। लेकिन उनकी साड़ियाँ बहुत अच्छी रहती है, लेकिन वो मैली रहती है, पूरी मैली रहती है ना वो स्त्रियों की साड़ियाँ। और वो जाती है कुकुट मुनि के आश्रम में, और उधर सेवा करती है, सेवा करते झाड़ू मारती है, बर्तन साफ करते हैं, उसके कपड़े धोती है, और बाद में बाहर आती है सुबह ना जब भी, तो पूरी साफ सुथरी रहती है, हाँ, उनकी सब ड्रेस साफ सुथरा रहता है। बोले अरे ये तो आश्चर्य है। फिर उसको लगता है अरे मैंने सपना तो नहीं देखा, ये क्या नारियां सुंदर आती है जाती है, मैले कपड़ों के साथ जाती है, शुद्ध होके शुभ्र कपड़े। लेकिन फिर नेक्स्ट डे वो वापस क्या करता है, रात को उठता है, और देखते हैं हमारे वो वापस से अंदर जाती है, मैले कपड़ों के साथ आती है, शुद्ध कपड़े। तो उनको रुको रुको रुको, आप कौन हो, ये क्या चल रहा है? तो बोलती है वो जो स्त्रियां बोलती है मैं हूँ गंगा, मैं हूँ यमुना, मैं सरस्वती, और ऑल द होली रिवर्स दे आर ऑल देयर। वो बोलते हैं कि हम जो है हमारे पानी में लोग डुबकी लगाते हैं, क्यों अपने पाप नष्ट करने के लिए, और वो पाप सब हम लेते हैं, और हम अनक्लीन हो जाते हैं। इसके लिए हम यहाँ आते हैं, क्यों? वैष्णव की सेवा करनी, भगवान के शुद्ध भक्तों की जब हम सेवा करते हैं तो क्या होते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन तुम कुंडली, तुम महापापी हो, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। हम लोग ने जो भी पापी देखे हैं उसमें सबसे पापी तुम ही हो। क्यों? मैंने क्या पाप किया? क्योंकि तुम अपने माता पिता का ख्याल नहीं रख रहे हो, तुम उनको इतना ट्रबल दे रहे हो, उनको इतने परेशानी दे रहे हो, तो तुमने जो पाप किया है वो तो घोर पाप है। तो कुंडली हिल जाता है, बोलता अरे, और तभी से वो पेरेंट्स की सेवा करने लगता है। तो इसमें मुझे अपने माता पिता की सेवा करने पे कुछ पॉइंट्स बोलने थे। तो गोविंद प्रभु ने एक लेक्चर में ऐसे बोला था कि कृष्ण की कृपा अगर आपको चाहिए तो माता पिता की कृपा जरूर चाहिए। अगर माता पिता की कृपा नहीं होगी तो आपको कृष्ण भगवान की कृपा नहीं होगी। तो अपने घर में जो बड़े रहते हैं, माता पिता सास ससुर जो भी है, तो उनकी सेवा हमको करनी चाहिए। उसका एक अच्छा रियलाइजेशन अनुभव मुझे आया 8 साल पहले। तो हमारे घर में कैसे रहता है, तुलसी प्लांट रहता है ना, तुलसी प्लांट। तो मेरे घर में तुलसी प्लांट था। तो 1 साल होने के बाद 1-1.5 साल का उसका आयु रहता है तुलसी प्लांट का। और तुलसी प्लांट ये होता है बोझ। तो वैसे तुलसी प्लांट था, तो उसका 1-1.25 साल हो गया था, और उसके बहुत से लीव्स जो थे ना वो सब गल चुके थे, कुछ ही लीव्स बचे थे उसमें प्लांट में। तो कुछ दिनों में मैंने ऐसा देखा कि तुलसी प्लांट के नीचे छोटे छोटे बहुत तुलसी प्लांट रहते, 3-4 तुलसी प्लांट। तो बहुत खुशी हुई, अरे 2-3-4 तुलसी प्लांट आ रहे, और ये तुलसी जा रहे, कुछ नए बच्चे आ रहे, पैदा हो रहे। और फिर क्या हुआ कि वो तुलसी प्लांट जो था कुछ दिनों में क्या हुआ कि वो गुजर गया। तो तुलसी प्लांट ऐसा स्प्रेड आउट था, उसके ब्रांचेस सब स्प्रेड आउट थे, नीचे वो छोटे छोटे तुलसी आ रहे थे। तो ऐसे ही था, और तुलसी ग्रो हो रही थी।
तो बीच में क्या हुआ, तो क्योंकि वो मर गया तो मेरे माता पिता ने क्या किया है, किसी ने मेरे माँ ने किसने किया, और वो तुलसी निकाल दी, तो मर गई थी ना, तो निकाल दी। हाँ, और 3-4 दिन में ऐसे हुआ कि वो जो बाकी का 3-4 तुलसी आदमी वो भी चला गया। हमने अरे क्या हुआ, तो वो जो पक्षी थे छोटे वो आके वो खा गए। हाँ, फिर मेरे को पता चला, मेरे को ये पता चला मुझे ये पता चला कि बिकॉज तुलसी प्लांट वॉज देयर, उसके ब्रांचेस थे। हाँ, इसके लिए वो तुलसी, नीचे का तुलसी ना प्रोटेक्टेड था पूरा, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, तो मेरे को भगवान ने ये अनुभव दिया, रियलाइजेशन दिया तभी, वो भगवान की कृपा है कि अपने माता पिता भी ऐसे ही है। जब भी हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तभी माँ वो खाना नहीं पका सकती जो पहले पकाती थी। और पिताजी वो पैसा नहीं ला सकते थे जिससे घर चला सकते थे। जैसे वो तुलसी प्लांट था, उसके थोड़े ही पत्ते थे, तो पत्ते में भगवान को ऑफर नहीं कर सकता, बाद में कुछ भी पत्ते नहीं थे। लेकिन क्योंकि वो घर में है, तो उनकी कृपा के कारण हम और हमारी फैमिली प्रोटेक्टेड है। We are protected, our family, our children, they are protected because the elders are there, because of their mercy, their blessings, they are constantly blessing us, they are our well wishers। तो उनकी कृपा से हम टोटली प्रोटेक्टेड है। तो इसके लिए जब हम माता पिता ऐसे है जो कांस्टेंट उनकी को वेल विशिंग, थोड़ा भी हम लोग काम करते हैं उनका ब्लेसिंग आता रहता है, और अपना जीवन किस पे चलता है, ब्लेसिंग पे चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमको अपने माता पिता की अच्छी का सास ससुर जो भी है उनकी अच्छी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम उसकी सेवा करते हैं तो एक्चुअली हम प्रोटेक्टेड होते हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ आती है, हमारे बच्चे, हमारा फैमिली भी स्टेज प्रोटेक्टेड। इसके एक मेरा गॉड ब्रदर है, वो है यूके में, हमारे काउंसिल ग्रुप में है। उन्होंने मुझे एक अच्छी उनका अनुभव बोला। तो वो यूके में थे और उधर प्रभुपाद डिसाइपल्स रहते, वो अकेले रहते बहुत बार, तो वो प्रभुपाद डिसाइपल्स वेयर देयर एंड ही वाज सर्विंग ऑन प्रभुपाद डिसाइपल, ही वाज ओल्ड, तो उसको कुछ लाना, कुछ काम रहेगा उनको, वो और उनकी पत्नी हमेशा उनकी सेवा करते रहते। तो एक बार आराम महाराज उधर गए, तो ये भी थे, वो प्रभुपाद डिसाइपल भी थे। तो प्रभुपाद डिसाइपल ऐसे बोले उनको कि दिस पर्सन यू आर दिस डिवोटी, ही इज सच अ नाइस, ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी, ही इज प्रोटेक्टिंग मी। महाराज को तो महाराज ने सब सुन के लिया कि वो मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और बाद में वो डिवोटी भक्त महाराज का गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो महाराज ने उसको पूछा कि हु इज टेकिंग केयर ऑफ हूम। एक्चुअली बिकॉज यू आर सर्विंग हिम, यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। तो बोला मेरा फंडा बराबर क्लियर कर दिया उसने, महाराज ने, महाराज। So that is the thing, that when you serve the senior devotee, that we may feel that we are taking care, but actually we are taken care of. That is the. So ये कुंडली को भी क्लिक हुआ क्या कि माता पिता की सेवा में ही है मेवा। तो वो सेवा करने लगा और ऐसे डेडिकेशन के साथ करने लगा कि उसके माता पिता इतने खुश हो गए, अरे ट्रांसफॉर्म हो गया कुंडली हमारा टोटली, और फुल ब्लेसिंग्स उसको मिलने लगे। भगवान के शुद्ध भक्तों की ब्लेसिंग की ताकत क्या रहती है, वो अभी आपको बाद में पता चलेगा। तो उनको फुल ब्लेसिंग मिलने लगे। और फिर इधर क्या हुआ, कृष्ण थे द्वारका में, तो उधर श्रीमती राधारानी उधर आ गए। तो कृष्ण तो टोटली बायस टुवर्ड्स ब्रजवासी है, वो तो मालूम है, उधर द्वारका में रहते हुए भी राधे राधे पुकारते रात को। तो कृष्ण राधारानी के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। तो फिर इधर क्या हुआ, रुक्मिणी को दूसरे प्रश्न क्या होगा, क्या होगा, गुस्सा आया। तो गुस्सा आ गया, तो ये सब लीला है, ऐसा मत समझोगे, तो भगवान की लीला है। तो गुस्सा आके वो चली गई वहां से, चली गई दिंडीरवन में जो है पंढरपुर क्षेत्र, उधर चली गई। तो चली गई और उधर करने लगी, तपस्या करने लगी। तो कृष्ण को पता चला गुस्सा आ गया, तो क्या करने का, मना नहीं गए। तो कृष्ण भी वहां आ गए दिंडीरवन में, उसको मनाने लगे, लेकिन वो मूड में नहीं थे मानने के, बहुत मनाया फिर भी वो मानी नहीं। तो कृष्ण से अच्छा हम लोग इधर आ ही गए, तो मेरा भक्त है, भक्त नहीं
भक्त के भक्त का घर है, भक्त के सेवक का घर है, तो उसको जाना चाहिए। तो ये जो स्पेशलिटी है, कृष्णा बोलते हैं जो कहता है कि वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। वो कहता है जो मेरा भक्तों का भक्त है या भक्तों का सेवक है, वो सच्ची में मेरा भक्त है। तो कृष्णा अपने भक्त के सेवक के घर में जाने की सोचते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, कुंडली अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, और कृष्णा भगवान स्वयं ढूंढते ढूंढते उसको आ रहे हैं, उसको मिलने। जिस कृष्णा को ढूंढने के लिए लोग तप करते हैं, जप करते हैं, वो सिर्फ शुद्ध माता पिता की सेवा करके कृष्णा उसको मिलने आ गए। तो कृष्ण जब भी आते हैं तो कुंडलिक माता पिता की सेवा करता रहता है। तो बोलता है कि अभी कृष्ण भगवान, अभी मेरे को टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। तो उधर एक ईंट रहता है, बीट, मराठी में बीट बोलते हैं, एक ब्रिक, वो कृष्ण भगवान को भेज देता है और बोलता है तुम तब तक इधर खड़े रहो। तो कृष्ण भगवान वहां खड़े रहता है ईंट पे, कमर पे हाथ रखते, और वो आता है, कुंडली जब सेवा खत्म होता है तो भगवान के पास आता है। भगवान बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ, तुम अपनी माता पिता की इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो, मेरे भक्तों की सेवा कर रहे हो, बोल तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलता है मुझे क्या चाहिए, तो मुझे इतना ही चाहिए कि आपका ये स्वरूप है, इस स्वरूप में आप यहाँ पे रहो अभी कायम। तो भगवान बोलता है तथास्तु, और वैसे वो कमर पे हाथ रखे हुए वो ईंट पे खड़े हैं, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, विठ्ठल। जो ईंट पे खड़े, विठ्ठल या विठोबा। तो ऐसे वो कथा है। और फिर घूमते घूमते राधारानी भी उधर आ जाती है, कहाँ गया कृष्णा, तो उधर राधारानी का भी विग्रह है पंढरपुर में। और फिर रुक्मिणी भी आती है घूमते घूमते, तो रुक्मिणी का भी विग्रह है पंढरपुर में। ऐसे वो विग्रह है। तो ये दिंडीरवन जो है, इसकी कथा क्या है कि दिंडीरवन में ना एक राक्षस था, दिंडी रवा नाम का राक्षस था। तो उसने देवता की इतना वाट लगाया था पूरे पृथ्वी पे। He had made such a problem for everyone. The devatas were very harassed, and they were saying, the devi devatas were saying, what they were saying? ओ भगवान विष्णु कुछ भी करो, इस राक्षस को हटाओ। तो तभी भगवान विष्णु बोलते हैं तथास्तु, मैं पृथ्वी पे आऊंगा, अवतार लूंगा और इस राक्षस का नाश करूंगा। तब एक श्रीचंद्र करके राजा रहते हैं पृथ्वी पे, जो तपस्या करता है हजारों दिव्य साल, एक दिव्य दिन, यानी हेवनली प्लैनेट का 1 डे इज 6 months ऑफ पृथ्वी लोक का, चंद्रलोक का 1 डे 6 months ऑफ पृथ्वी लोक का। सो 1000 सेलेस्टियल ईयर्स वो ये करता है, क्या आराधना करता है। तभी लॉर्ड शिवा उससे प्लीज होते हैं, और फिर वो मांगता है लॉर्ड शिवा की कि मुझे आपके जैसे पुत्र चाहिए, आपके जैसा शूरवीर, person who has the strength like you, intelligence like you, I want such a son। तो लॉर्ड शिव बोलते हैं मैं नहीं, मेरे से भी उच्च ऐसे लॉर्ड विष्णु आपका बेटा करके आएंगे, उनका नाम रहेगा आपको मल्लिकार्जुन। और वो फिर मल्लिकार्जुन उनका बेटा करके आते हैं लॉर्ड विष्णु। और जब ये 20 साल के रहते हैं तो एक जंगल में जाते हैं, और ये दिंडीरवा के साथ उनका युद्ध होता है। वो युद्ध इतना घमासान होता है, आकाश में होता है, समुद्र में होता है, एक दूसरे पे बड़े बड़े वृक्ष फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, माउंटेन पीक्स फेंकते हैं। तो फिर वो करते करते युद्ध, एक उसके पास ना लोह दंड आता है, आयरन रॉड आता है, और वो आयरन रॉड से क्या करते हैं, वो मल्लिकार्जुन भगवान विष्णु उस दिंडीरवा को मारते हैं, और वो मरने वाला रहता है, मर जाने वाला रहता है, मरने वाला रहता है। इतने में उसके नाम पे इसके मुंह पे किसका नाम आता है, हरि। हरि का नाम आता है। और जैसे उसके मुंह पे हरि का नाम आता है, तभी क्या होता है, मरते समय हरि का नाम आता है, क्या होता है, आप भगवत नाम देते भाई। इस टाइम क्या होता है कि भगवान खुद उधर अवतरते हैं, भगवान विष्णु आते हैं और बोलते हैं तुमने मेरा नाम पुकारा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि भगवान वहां आते हैं, भगवान का नाम वो अंत समय पे पुकारता है, वो शुद्ध होता है वो राक्षस, और बोलता है कि ये स्थान है, लेट दिस प्लेस बी अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। यहाँ पे जो भी आएगा उसका सिंपल सब रिएक्शंस इरेडिकेट होना चाहिए। यहाँ जहाँ पे लोह दंडा गिरा है, और यहाँ पे आप प्रिसाइडिंग का बनो, भगवान विष्णु, यानी मल्लिकार्जुन, आप यू बिकम द प्रिसाइडिंग डिटी। सो ये जो दिंडीरवन है, यही वो पंढरपुर है।
दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस पंढरपुर। तो ये क्षेत्र है 4 माइल लंबा, 4 miles long and 2 miles wide। It was called पुंडलिक क्षेत्र, पुंडरीक, and finally came to be called as पंढरपुर। तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि जो चंद्रभागा नदी है, चंद्रभागा नदी, उसमें जो पत्थर है, छोटे छोटे पेबल्स, स्टोन्स है, they are not pebbles and stones, they are great ऋषिज, मुनीज, they are doing तपस्या चंद्रभागा के तीर पे है। तो वैसे वो घनघोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो फॉर्म में है, ऐसे बोलते हैं। तो जब मैं पंढरपुर में गया था तो मुझे याद है मेरे काउंसलर के साथ गया था, तो हम लोग ने काकड़ आरती अटेंड की। किसने काकड़ आरती अटेंड की यहाँ पे? वो कितने सुंदर रहते, उनका अभिषेक रहता है। मुझे अभी भी याद है उनके मुंह में ना वो ये देता है, बटर देता है, ऐसे हाथ में लेके ना लॉर्ड को ऐसा बटर देता है सुबह सुबह। इतना मजा आया देख के वो विठल का रूप विग्रह। और फिर वो चंद्रभागा के वो साइड में अपना इस्कॉन क्या है, पंढरीनाथ है ना, राधा पंडित श्री राधा पंढरीनाथ है। तो हम लोग उधर गए थे, उधर अच्छी गौशाला है जब गाय की सेवा कर सकते हो। और फिर वो नदी के इस तीर पे उस तीर पे है, ईस्ट तीर पे, तो वहां जाके नदी में हम लोगों ने स्नान किया था चंद्रभागा में। तो आप भी पंढरपुर जा सकते हो, चंद्रभागा में स्नान कर सकते हो, इस्कॉन में रह सकते हो, विठल का दर्शन ले सकते हो। तो ऐसे तुकाराम महाराज बोलते हैं, तुका म्हणे आम्हा अनाथ कारणे पंढरी केली निर्माण देवे। तुका म्हणे आम्हा अनाथ कारणे पंढरी केली निर्माण देवे। तो हम लोग सब अनाथ है, भगवान के बिना हम लोग सब अनाथ है। तो पंढरपुर में विठल क्यों आ गए? हमको सनाथ बना गए, हमको एक नाथ भगवान खुद आ गए। भगवान की छाव में रहते हैं। When we are under the protection of the Lord, we get converted from अनाथ से हम कौन बनते हैं? सनाथ बनते हैं। जो मैं भक्ति में पहली बार आया था तो मेरे को राधा गोपीनाथ में आया था, तो मेरे को वो एक ही साल में वो फीलिंग आया, फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। यू फील प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, जो मैं जिसकी हम तलाश में है ना, जो प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, वो जो फीलिंग है, शेल्टर। वी डोंट नो, वी फाइंड शेल्टर समटाइम्स इन म्यूजिक, sometimes we find shelter in cinema, sometimes we find shelter in, some people find shelter in drinking, but the actual shelter we are looking for is the shelter of Krishna। कृष्णा के चरण का shelter हम लोग देख रहे हैं। तो वो shelter जब हमको मिलता है ना, तो हमको पता चलता है कि हम sheltered है, हम अनाथ से हम बन गए, सनाथ बन गए। और यहाँ पे लॉर्ड चैतन्य भी आ गए। चैतन्य महाप्रभु कभी आए? तो साउथ इंडिया यात्रा में जब उन्होंने जगन्नाथपुर से साउथ इंडिया यात्रा शुरू किया, तो यात्रा में वो पंढरपुर स्थान में भी आ गए, दिंडीवन भी आ गए। और वो खोज में थे अपने बड़े भाई विश्वरूप की खोज में थे। तो विश्वरूप जब ये चैतन्य महाप्रभु बड़े भाई थे, तो वो छोटे उम्र में घर छोड़ के चले गए थे भगवान की खोज में, भगवान की आराधना करने। तो वहाँ पे पंढरपुर आए, उन्होंने विठल का दर्शन लिया, उनके चरण स्पर्श किए, विठल के मंदिर के सामने एक मंडप में उन्होंने नृत्य किया चैतन्य महाप्रभु में, बहुत ही भाव विभोर होकर नृत्य किया। तो उधर उनको पता चला कि एक ग्रेट सेंट नेम्ड रंगापुरी वहाँ पे आ गए। तो ये रंगापुरी कौन थे? ये रंगापुरी माधवेंद्रपुरी, यानी चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु थे ईश्वरापुरी, उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी, उनके शिष्य थे, यानी उनके गुरु भाई थे, यानी ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे। और वो भी भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो जब उनको ये पता चला कि रंगापुरी वहां गए, तो चैतन्य महाप्रभु उनके मिलने गए, और मिलते ही उनके चरण स्पर्श किए चैतन्य महाप्रभु ने, और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन किया जन्म कि मैं नवद्वीप से हूँ। तो जब भी रंगापुरी ने सुना कि नवद्वीप से, तो बोला अरे मैं भी माधवेंद्रपुरी के साथ नवद्वीप में गया था, और वहां पे मुझे मालूम है कि मैं एक घर में गया था प्रसाद लेने के लिए। वो घर था किसका? जगन्नाथ मिश्रा और उनकी पत्नी सची माता, और उनका एक बेटा था, और उन्होंने वो एक वेजिटेबल बनाया था, बनाना वेजिटेबल, केले का वेजिटेबल। उसका स्वाद मुझे अभी भी याद है, और इतने प्रेम से वो माते ने मुझे सर्व किया था वो वेजिटेबल, तो मैंने खाया था। और उनका एक बेटा था विश्वरूप, वो बाद में वो घर छोड़ के चला गया, और यहाँ आके उसने संन्यास लिया। उसका नाम था शंकरण्य स्वामी। यह अभी चैतन्य महाप्रभु सुन रही है अपने बड़े भाई के बारे में। और वो यहीं पंढरपुर में आ गया,
और उसने स्पिरिचुअल परफेक्शन उसको मिल गया, हाँ, और उसने अपना देह त्याग दिया। ये सुन के चैतन्य महाप्रभु इतने दुखी होते हैं, he becomes very emotional and he tells रंगपुरी महाराज को बोलते हैं, मैं ही हूँ वो विश्वरूप का छोटा भाई, मैं ही हूँ वो सच्ची माता का बेटा, हाँ, जिसके घर में आपने प्रसाद खाया था। तो ये सुन के रंगपुरी बहुत खुश होते हैं, उसको आलिंगन करते हैं, हाँ, ऐसे उनके भेंट है यहाँ पे। तो अर्लियर वहाँ पे विश्वरूप के चरण का एक जगह था, विश्वरूप चरण बड़े भाई के स्थान था, लेकिन वो अभी लुप्त हो गए, वो अभी नहीं है। उधर ये भी स्थान है कि लक्ष्मीपति तीर्थ जो माधव के गुरु थे, उन्होंने भी अपना देह पंढरपुर में ही त्याग दिया है। तो ऐसे बोलते हैं कि पंढरपुर में जो भी आप तपस्या करते हो, धर्म शास्त्र जो भी करते हो, पंढरपुर में नहीं, आप जो भी तपस्या करते हो, दान करते हो, भागवतम का श्रवण करते हो, बहुत लाइफ में आप करोगे, जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी वो पंढरपुर में पंढरीनाथ विठल के एक दर्शन से वो आध्यात्मिक प्रगति होती है। इसके लिए ऐसे बोलते हैं कि देवी देवता भी दे एस्पायर टू कम टू पंढरपुर, और हर रोज 33 कोटि देव आते हैं पंढरपुर में और भगवान विठल की पूजा करते हैं, ऐसे करते ब्रह्मा सब 33 देवी देवता। तो ऐसे है पंढरपुर धाम। तो यहाँ पे आई जस्ट वांट टू कंक्लूड विद द मूड ऑफ द डिवोटीज ऑफ पंढरपुर। जो पंढरपुर है, जो भक्त है, उनका मूड क्या रहता है, व्हाट इज द मूड ऑफ द डिवोटीज? तो उनका भाव जो रहता है ना, वो सेवा भाव रहता है, वैष्णव सेवा। तो ऐसे बोलते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमको ये मालूम नहीं रहता कि भगवान की कृपा कब हम पे मिलेगी, लेकिन आप अगर भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान ढूंढते हुए आते हैं आपको कृपा देने के लिए, ना। तो ये भगवान के भक्तों की सेवा का महात्म्य ऐसा है, तो ये हमको समझना चाहिए। और इसकी कहानी क्या है, अपने स्क्रिप्चर्स में एक दो कहानी इसको मालूम है कि भगवान के भक्तों की सेवा करके उनको भगवान की कृपा मिल गई। उसने मांगी भी नहीं थी, मिल गई। एक दो कहानी इसको याद है, आई जस्ट गिव द नेम्स। शिवास ठाकुर, उनकी चैतन्य महाप्रभु उनके घर में नृत्य करते थे, वहाँ कीर्तन करते थे। उनकी एक नौकरानी थी दुखी, तो जब भी चैतन्य उधर वो क्या करते थे, सबके लिए नहाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के मटके उधर लाते थे, गंगा से पानी लगे उधर के पास, उतना ही उसका काम था, और शिवा सब की वो सेवा करती थी। तो जब भी महाप्रकाश लीला चैतन्य महाप्रभु की थी, जब उन्होंने अपना अलग अलग स्वरूप दिखाया भगवान के अपने भक्तों को, तो बोला वो ये कौन है, ये दुखी, हाँ, आज से तुम सुखी हो जाओगे, हाँ। और उनको अपनी पूरी क्रोध मांगी भी नहीं दी, उसको सिर्फ सेवा करनी थी भक्तों की भगवान के, और उन्हें सेवा मांगी भी नहीं, लेकिन महाप्रभु ने उनको अपनी पूरी कृपा दे दी, भगवान की शुद्ध भक्त दे दी, हाँ। तो ये है सीक्रेट कि आप अगर भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो आपको भगवान की कृपा ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। तो महाराज बोलते हैं अपने लेक्चर में, हाँ, बहुत बार कि डू नॉट ट्राई टू बी ग्रेट, यानी आप ग्रेट डिवोटी बनने की कोशिश मत करो, ट्राई टू सर्व द ग्रेट, हाँ। जो भगवान के भक्त है शुद्ध, उनको सेवा करो, हाँ। तो सेवा करोगे तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसे भगवान का लॉजिक ऐसे है कि जो भगवान का भक्त रहता है, हाँ, उसके लिए अगर आपके मन में प्रेम है, हाँ, तो भगवान के मन में आपके लिए प्रेम जागृत होता है, भगवान की कृपा पर, या वो भक्त को आपसे प्रेम है या आपको उससे प्रेम है, हाँ, तो भगवान के हार्ट में अपने लिए प्रेम जागृत होता है और भगवान की कृपा हमें मिलती है। तो इतना सहज है भगवान की कृपा पाना, हाँ, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है आज के ज़माने में, जहाँ हम अपना ईगो लेके बैठते हैं और सेवा भाव भूल जाते हैं, हाँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भक्ति रसामृत महाराज ने एक बार बोला था राधा स्वामी की गुरु पूजा में, हाँ, कि महाराज ने बहुत इंस्ट्रक्शन दिए हैं, विच आर लाइक ज्वेल्स, हाँ, राधा महाराज ने, हाँ। बट इफ आई वांट टू चूज वन इंस्ट्रक्शन, हाँ, भक्ति रसामृत महाराज ये ऐसे भक्त है, ऐसे सन्यासी है जो
जो सब भक्तों को प्रिय है और वो एक बहुत ही उच्च कोटि के सन्यासी है। ऐसे बोलते कि जब राधेश्याम प्रभु और गौरांग प्रभु उनको उन्होंने कल्टिवेट किया है। और जब पुणे में राधेश्याम उनके बारे में बोलते थे वैसे उनकी आँख ऐसी बड़ी होती थी, भक्ति रसामृत महाराज, आई सी द इमेज ऑफ राधा महाराज इन हिम, ऐसा बोलते थे वो। तो वो बोले थे कि इफ आई वांट टू चूज वन इंस्ट्रक्शन ऑफ महाराज की व्यास पूजा में, देन आई वुड चूज दिस। तो मैं सुन रहा था तो बोला कि टू बी द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, दिस इज द इंस्ट्रक्शन महाराज से इन ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर। तो वहाँ पे भक्ति वेदांत मेडिकल कैंप भी होता है पंढरपुर में, हर साल अभी भी हुआ था। तो वारकरी आते एक महीना चल के उनके पैर में कुछ जख्म रहती है, कुछ भी कभी बुखार रहता है, और वो सेवा करते हैं, सब सेवा भाव से कीर्तन रहता है, प्रसाद वितरण रहता है। तो उधर मेरा एक अनुभव है, एक एंड करते हुए मैं वो बोल रहा हूँ कि अनुभव है। हमारे भक्ति वेदांत में एक नर्स थी, अभी वो रिटायर हो गई। तो वो हमेशा जाती थी पंढरपुर सेवा कैंप में, पंढरपुर भगवान की सेवा करने के लिए। और मुझे ऐसा काम मैंने देखा तो नहीं है, पर मुझे ऐसा बोला भक्तों ने हमारे हॉस्पिटल के कि वो जब भी वारकरी आते थे और उनके पैर में कोई जख्म था वो साफ करती थी, तो वो रोती थी, अरे विठ्ठलासाठी तुम्ही किती कष्ट घेतले, ऐसा सोचती थी। और उसके आंखों से पानी आते, वो ऐसा साफ करते थे उनके चरण, ऐसा उनका सेवा भाव था। और मुझे उनका खुद एक अनुभव मिला कि वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, तो 3rd फ्लोर में एक वार्ड में थी। तो मैं एक भक्त के साथ गया उनको मिलने, तो उनके इधर सर पे एक ये आया था, तो एक ग्रोथ आया था, तो वो ग्रोथ का ऑपरेशन हुआ था, कट हुआ था, तो बैंडेज था। और एक हफ्ते में या कुछ दिनों में ही वो पंढरपुर एक आषाढ़ एकादशी थी, और वो थी हॉस्पिटल में, ऑपरेशन हो गया था। और वो डॉक्टर आ गए, वो भी भक्त थे। तो बोला कि माता जी आप ऑपरेशन अभी आप नहीं जा सकते कैंप। तो बोली नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे कैंप में जाना है, मी जाणारच, मी जायलाच पाहिजे, विठ्ठलाच्या दर्शनाला मी जाणारच। तो डॉक्टर भी भक्त थे, वो बोले माता जी तुमच्यापुढे मी काय करू शकतो, तो मैं आपके यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जाने दो, आपको कौन रोक सकता है, कोई रोक नहीं सकता, ऐसे डॉक्टर ने कहा। तो ऐसे उसकी भक्ति थी कि ऑपरेशन फिर भी उसको जाना था। तो ये सेवा का भाव रहता है, उधर के जो वारकरी है, उधर जो सेवा करते हैं, उनका सेवा का भाव रहता है। और जिसका ये भाव रहता है उसको कृष्णा की कृपा प्राप्त होती है। तो हमें बहुत ही ग्रेटफुल रहना चाहिए, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि भक्तों की कृपा से, श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों की कृपा से अपने को कृष्ण भक्ति मिल रही है, जो इट्स वेरी रेयर। ऐसा बोलते हैं कि धाम में आप प्रवेश नहीं कर सकते, कि आपको अनंत जन्मों के पुण्य जब में आते हैं तभी आप धाम में प्रवेश कर सकते हो। तो हमको तो धाम में प्रवेश कर सकते हो, हर टाइम हम भगवान का नाम ले रहे हैं, यहाँ पे भगवान खुद आते हैं नाम के रूप में। तो ये जो कृपा हमें मिली है भक्तों की कृपा से, इसमें अपनी कोई वी डोंट हैव एनी पोजीशन और वी डोंट हैव एनीथिंग टू गेट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, वी डोंट हैव एनी क्रेडेंशियल कुछ नहीं अपने पास। क्रेडेंशियल एक ही है कि भक्तों की कृपा, भक्तों का संग। तो ये जो हमको इधर मिला है ठाकुर विलेज में, राधा गोपीनाथ में, इस्कॉन में, तो इतना ही हमें ग्रेटफुलनेस रहना चाहिए कि इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भक्तों के संग में रहो, ऑटोमेटिक आपकी भक्ति होती रहेगी, आप नाम श्रवण होगा, कीर्तन होगा, धाम जाओगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आपको शुद्ध भक्ति भगवान की प्राप्त होगी। तो इतना ही हमें करना है कि प्रभुपाद ने ये शिप बनाई है हम सबके लिए, और शिप जा रही है भगवत धाम। वो शिप पे सिर्फ रहो, अपना काम क्या है, सिर्फ शिप पे रहना है, और वो शिप हम लोग भगवत धाम लेके जाएगी। तो प्लीज अटेंड द क्लास, व्हाट यू हैव गॉट, cherish it, nourish it, and stay in devotion till the end of your life, chanting the names of Krishna, chanting 16 rounds, and you will achieve perfection, even in this life. That is what Srila Prabhupada has said. Thank you very much. Hare Krishna. अभी सीता माता जी का ये है,